टीचर्स डे का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई के पात्र उसके लिए तालियां बजा रही हैं। And we teachers are always happy when our students succeed in adversity. देखिए conditions they are conducive, favorable, definitely you are going to succeed. मैं उतना नहीं बोलूँगा जितना मैं डायरेक्ट में बोल करके आया हूँ। बाय एंड लार्ज चीजें वही हैं, ठीक है? But I will try to continue on the same road. Especially for those students who have taken admission this year. ताज्जुब होता है कि एडमिशन के टाइम पे बड़ी मारामारी होती है, especially for programs like biochemistry and biotechnology. And this year we have successfully filled all the seats in biotechnology and biochemistry. But when it comes to the ground realities, that is inside the classroom, we don't see 100% attendance. And this creates a shock and forces us to think why it is happening like this. What is the reason? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर एडमिशन सब लोगों ने दिया है, सब लोगों ने पैसा खर्च किया है इस प्रोग्राम में डिग्री लेने के लिए, but not improving, but rather those information and senses they are being controlled by something else. This you have to be very alert on this front, that you should not be in the control of this. अभी क्या होगा? Sooner or later Apple is going to launch iPhone 16 with artificial intelligence. Those of you who can buy everything will be done with that. Most of the things will be done with ChatGPT. These type of software have come into existence. Okay. So the purpose is you must remain human being. And what is the meaning of being? Why you always use the word human being and not only human? Being is a quality. Okay. And this is the quality which makes us human. Have you seen a picture of Lord Shiva where he is sitting and there is a snake wrapped on his neck? Okay. In the same photograph you will observe that there is a peacock. In the same photograph you will observe that there is a bull over there. And in the same photograph you will also see that there was a tiger. Okay? And all these things have been depicted in the same picture. So this picture is actually sending you a message that so many things which are antagonistic to each other, where the coexistence cannot happen, still it is happening. So it was the being of Lord Shiva which was responsible for this
particular happiness. But ultimately, we see, we just know, and then we forget. This is what we do. We don't try to understand the meaning of it. Now, whenever a new shop is being inaugurated, or a new machine is being installed and it is being used up for the first time, then Nadia is, नाटक पढ़ते हैं ना, तो what is the meaning behind it? नारियल फूल में बड़े शौक से फोड़ देते हैं, ले आओ नारियल पड़ा तो एक ही बार फोड़ना चाहिए, पानी में डालना चाहिए और तुरंत कोई अच्छा इंसान होगा उसको पिला देंगे, करते हैं ना। लेकिन उसके पीछे कोई मतलब ही नहीं है। वो मतलब जो उसकी मीनिंग जो उसकी आती है ये है कि कोकोनट के ऊपर देखिए क्या है, हार्ड शेल, इट अ हार्ड शेल, अंदर क्या है, स्वीटनेस है, द वाटर इज स्वीट एंड टेस्टी, ओके। so outside it represents the ego in the person, so if you break the ego, the sweetness will come out. And the majority of the crisis in any system, in any organization is simply because of it. कहते नहीं लोग यार मैं सुपर पावर, यहाँ हर इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करने के लिए पावरफुल होना चाहता है, चाहता है कि बस मुझे ये पावर मिल जाए, वो पावर मिल जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं देश चलाऊँ, मैं चीफ हो जाऊँ, चीफ जस्टिस हो जाऊँ, तो इसी में आता है कि कैसे हम इन सबको कंट्रोल करें। और बहुत लोग को पसंद भी आता है कि पीपल शुड मूव, पहले चक्कर आगे पीछे चलने चाहिए, होता है ना, देखा है ना, होता ही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये सब का कोई मतलब नहीं। इंसान इस काम की है नहीं कि हम सुपर लॉर्ड हो जाए, लॉर्ड के ऊपर लॉर्ड हो जाए। और भी देखा हूँ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है, उसमें बाहर रिव्यू पत्थर रखते हैं, और एक पत्थर मंदिर के अंदर जाता है, हो जाता है नहीं। लेकिन इंसान बार बार जाने के बाद वो भगवान बात करता है वैसे पत्थर, क्यों? तो इसका मतलब कि हम सिर्फ दिखावे का काम करते हैं। भाई जो वर्शिपिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है? वो ये नहीं होती। मैं किसी उसको धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी में पाया जाता है। एंड इफ यू थिंक रिलीजन वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, तो इंडिया के अंदर इतने खिलौने लोग कार्य हो जाते हैं कभी नहीं, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हर चीज को हम पूछते हैं, फ्रॉम अ डस्ट टू द माउंटेन्स एंड टू द स्काई, एनीथिंग वी वर्शिप। भगवान हमारे साथ, हमारे हर चीज भगवान, isn't it? फिर भी हम इंसान नहीं बन पा, तो कुछ तो करना चाहिए। तो आज का दिन जो ये मनाया जा रहा है, तुम लोग लग रहा हो कि सर बड़ी बड़ी बातें कर, बड़ी बहुत सिंपल बात, कुछ शिफ्टिंग तो लानी पड़ेगी ना इसके अंदर, कुछ तो लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और जो आप जर्नी चूज करोगे, जो पाथ चूज करोगे, उसका रिजल्ट भी आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। मैंने वहां पे भी बोला कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज में बड़े सक्सेसफुल हो जाए, सब कुछ सीएसआईआर का एग्जाम आपने क्लियर कर, तो उसमें 98% आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने एग्जाम फेस किया, आपने वो 100 क्वेश्चंस किए, इसकी वजह से आपने 1% जो होता है वो बाकी होता है, वो है। इसीलिए तो देखो ऐसा होता है कि रेट ऑफ क्लियरिंग द सीएसआईआर एग्जाम इज वेरी गुड। कितने लोग क्लियर, एक निकल आता है बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मेरे बस चल रहे सभी वो कर, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग मेहनत ही नहीं करते। मेहनत करनी चाहिए ना। और एक चीज में तुम लोग को बहुत क्लियर लगा, बहुत क्लियर लगा,
CSIR या DBT या ICMR, क्योंकि इसके आगे का पड़ाव वही है और कुछ नहीं है। फेलोशिप एक लाना है, 40,000 रुपये मिलेगा, आप इसलिए से रिसर्च करो, ठीक है। अगर वो लाना है, वो पाना है इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसके लिए बड़ा डिफरेंट रूट लेना पड़ेगा। यहाँ का एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, वो आपको काम नहीं है। यहाँ क्या है, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर, टाइप लॉन्ग, बना दिया, खट खट हो गया, मिल गया नंबर अच्छे अच्छे, ठीक है। इतना पोस्ट ग्रेजुएट विद 80% मार्क्स, क्या करो, बट भी दूर है बात नहीं। मार्क्स का ये है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, बाकी उसकी जो क्वालिटीज होंगी, एबिलिटीज होंगी, सब बात में रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। मार्क्स मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, योर विजडम। ये नहीं कि आपको जितना मिल गया आप उसका बहुत समझने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को हो सकता है कुछ ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपको CSIR के 13 यूनिट आपके खत्म नहीं हो कायदे से। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा इसी के लिए, क्योंकि इट इज राइट टाइम टू एक्सप्रेस माय थॉट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आप जैसे ही प्रीवियस कंप्लीट करते हैं वैसे ही भागने लगते हैं कि CSIR का एग्जाम में क्लियर हो जाना कहते हैं ना। बहुत लोग को सुझाव ये भी मिलता है कि अप्लाई कर देना चाहिए, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस के लिए देखिए, कहते हैं ना। भाई मैं भी शिक्षक, मैं भी बोलता हूँ, हमारे जो शिक्षक लीग्स जो हैं वो सब भी आपको अप्रोच ही गलत, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। क्यों? जिस चीज के लिए आप तैयार ही नहीं हुए हैं उस चीज में भरना चाहिए। जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं हैं उस चीज का एग्जाम भरने ही क्या, फॉर्म भरने ही क्या, तो तैयारी नहीं है। अब देख लेना, अरे देख लेना, क्या बैकलॉग के क्वेश्चंस मिलते हैं, देखो ना, बैकलॉग के क्वेश्चंस मिलते हैं ना। बैकलॉग पेपर्स के पुराने पेपर्स जो बैक पेपर्स हो चुके हैं उनके तो है ना, उसको देखिए, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप बढ़ते हैं वैसे आपकी पूरी नॉलेज आपकी हो जाएगी, आप टाइम आपको दे सकते हैं। इसलिए मेरा जो सुझाव है आप लोगों को कि आप तैयारी पूरी कर लीजिए मुकम्मल, और जब अंदर से बोलने लगे कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, तब वो 13 यूनिट पहले कंप्लीट कर लीजिए, 13-14 जो भी यूनिट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर करिए कि अब हाँ मैं तो 1500 रुपए पैसा भी घूम करोगे, टाइम भी वेस्ट होगा। क्या बताएं कि जो है यार ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो वैसा आ गया, मैं इतना पढ़ कंप्लीट कर लिया अपना टॉपिक सिलेबस तो कंप्लीट। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसी बायोकेमिस्ट्री करके ही बायोकेमिस्ट्री नहीं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, और आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। आजकल तो सब हमारा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी कहलाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कहलाता है, इधर भी लेकर के कहीं भी जाता चले, कोई जरूरी नहीं ना PhD की, ठीक है। PhD 5 साल लगेगा, उसका फिर चौराहे पर खड़े होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चौराहे पे आप खड़े रहिए अगर, और 10 मिनट वहां पे खड़े होते हैं, स्टैंड एट अ क्रॉसरोड एंड ऑब्जर्व द थिंग्स, मेनी थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। पूरी लाइफ की आपकी जो वो है ना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी वहां पे चौराहे पर, बेगर्स टू चूजर्स सब मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि आप लोग कुछ तो करिए, सोचिए। सोचने पे कितने लोग मजबूर कर रहे हैं? मैं मजबूर करता हूँ सोचने पे, कितने लोग एग्री करते हैं सोचने का? यही अल्टीमेटली एजुकेशन है कि if the teacher forces you or tricks you so that you start thinking, okay, एजुकेशन हो गई। फिर तो आप पढ़ ले, कुछ भी पढ़, भाई किताब पढ़नी है ना, किताब तो आप पढ़ते चले आए, ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर उठा लीजिए, वर्ड उठा लीजिए, वॉकर उठा लीजिए, कोई किताब उठा लीजिए, थॉमस डेविल को उठा लीजिए, स्ट्रैंड को उठा लीजिए, ब्रूस एडवर्ड्स को ले लीजिए, डार्विन को, बर्टन को ले लीजिए, किसी ने लेना सबसे देखिए पढ़, लेकिन सोच सकते हैं
ये क्या आप एजुकेटेड हैं? गर्मी और उमस दोनों की संभावनाएं बहुत तेज है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे कुछ कुलीग्स को बैठे हुए हैं तो हमेशा ये सोच रहे हैं कि यार जल्दी से खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि इनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार आती है, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी 2 ही बार आएगी, ठीक है। इसलिए मैं सब कुछ कहने के बाद ही आपसे मैं हटूंगा। तो इसलिए देखिए ऐसा है, लाइफ इज वेरी सिंपल। इफ इट इज नॉट सिंपल, मेक इट सिंपल। डोंट ओवरथिंक, थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड, स्टडी हार्ड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फजूल का वक्त मत जाया करें। तो टाइम और मनी ये दो चीजें ऐसी हैं, who knows better than these researchers, researchers से better, ठीक है। they know the value of money। अगर तुम लोग को पता नहीं है ना, उसको फेलोशिप मिलती है, उसको नहीं मिलती है, उसको लो अमाउंट मिलता है, हाई अमाउंट मिलता है, तो डाइवर्सिटी उसके अंदर पैसा खर्च होगा, इसी की बात से लगेगा कि हाँ आपको घर से नहीं लेना चाहिए। आई मस्ट हैव माय ओन फेलोशिप और आई मस्ट एंटर इनटू समथिंग प्रोफेशन टू स्टार्ट। क्या करेंगे बताइए, कुछ करेंगे आप? पहली चीज तो ये करिए कि अपनी दिनचर्या को सुधारिए। सुबह उठने का समय सही करिए और रात में ऑटोमेटिकली सो जाएंगे आप टाइम से। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। सुबह उठिए और उठ के बेड पे पड़ जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से धीरे धीरे उठिए, नहीं और उस वो 5 मिनट 10 मिनट जो लेटे रहेंगे उसी में प्लान कर दीजिए कि आज करना क्या है, उसी में प्लानिंग करिए दिन भर आएगा। और यही चीज मैं बता रहा हूँ कि सुबह की शुरुआत डिसाइड करेगी कि आपका दिन कैसा होगा। और कोई भी नेगेटिव इंसान घर के अंदर जो मिले तुरंत उसका हाथ छोड़ दो, पैर पड़ जाओ, ठीक है, और कह दो कि दे भाई इससे दूर रहना है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय डे, टू गो टू हेल, स्पॉइल योर डे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जब लॉन्च करेंगे आपको, जब यहाँ पे आए कहाँ पे कैंपस के अंदर, तो चेयरफुल, डोंट कम विद अ कॉन्स्टिपेटेड फेस कि यार आज तो मतलब दिन खराब है। सभी इसको प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वहाँ सभी को प्रॉब्लम, ये जो बैठे मुस्कुरा रहे हैं लोग ना, सबको प्रॉब्लम है। तो यही है, हाँ, जितने इस पृथ्वी पे आए हुए हैं राइट फ्रॉम बर्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब उससे पहले भी प्रॉब्लम देता रहता है, वो जो मदर कंसीव करती है उन्हीं को प्रॉब्लम कितनी फेस करनी पड़ती है। उसके आगे का आप समझ लीजिए, ये इंसान प्रॉब्लम के लिए फेस करने के लिए आए ही है ना। ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, सब लोग बिल्कुल सबको है, सबको बहुत अमीर, ठीक है। बट सिंस यू हैव गॉट दिस ग्रे मैटर प्रीमियम ब्रेन, इसलिए शरीर के टॉप मोस्ट पोजीशन पर रखा गया, इसीलिए इसको ऊपर रखा गया। The head should rule over heart. To be a human being, the heart should rule over head. But for professions, the heart, the head should rule over heart. ये दोनों, इसमें strike, you have to strike a balance among yourselves. जिसको ये कला पता है ना, वो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, all type of life में वो अपना succeed करे। तो फिर से डॉक्टर नीलम यादव, प्रोफेसर नीलम पाठक, डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज दीप, रिसर्च फेलोज। मैंने जो बातें यहाँ पे कही, थोड़ा इनफॉर्मल बच्चों के भी बोला, थोड़ा फॉर्मल में भी बोला, कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, बट from the bottom of my heart, बहुत दिन हो गया यूज़ किए। I thank all of you for listening to whatever I have said, and I expect from you that change can happen anytime, and you can start changing yourself towards a better and more fruitful way of enjoy a more fruitful way of living. Thank you.
Happy Teachers Day to all my colleagues, head of the department, and dear students. We are lucky we have Professor Farooq Jamal as HOD. He is a very good orator. उसके और कुछ बोलने को बचता ही नहीं है, क्या बोला जाए। उन्होंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। बस आप जब भी यहाँ पे पढ़ाई करिए वो दिल लगा के करिए, और यदि दिल लगा के पढ़ाई करेंगे उसको ऐसा फल लेंगे तो आपको सही में चीजें समझ में आएंगी। और जो सर ने बताया, अगर आपकी परमिशन हो तो आज मैं आपकी मिमिक्री करके दिखाती हूँ। मिट्टी का तेल होता था, किराने की दुकान में बड़ी मुश्किल से मिलता था। छोड़ो, ये सब तो फिलॉसफी की बात है, हम लोगों को कहाँ से आएंगे। और सुनोगे भी तो कहोगे छोड़ो, सबसे स्वीट डीन हमारी, हमें नहीं पता था कि डीन इतनी प्यारी होती है। डीन के नाम से भाई वायरस याद आता था। If you don't run, you lose. But नीलम नाम से पहली बार क्लास में आई, so she was like, हमें ना पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है? तो हम पढ़ाएंगे, है ना? कभी-कभी टाइम भी नहीं देखेंगे और दूसरे टीचर्स की क्लास भी ले लेंगे, क्योंकि मैम को पढ़ाने में हम लोगों को इतना मजा आता है कि कभी-कभी मैम 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़ा देती है और मेरी गान से बाहर वेट करते रहते हैं। मेरी गान से क्लास में आके बोलते हैं कि देखो क्लास में कैसे आते हैं, कोई पढ़ा रहा होता है तो बीच में थोड़ी घुसा जाता है। लड़ाई देखते रहते हैं, रोज में मौके पे लौट आते हैं। एक दिन मैंने पतले से बड़ा दिए तभी, बट पहले हमें लगता था कि पतले से बहुत डांटते होंगे, ऐसा लगता था हमें कि सर ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी सर, फिर से मुझे लगा कि सर ने कहा कि बीएससी का कोई भी बच्चा अलाउड नहीं है, बायोलॉजी वाले हॉल में सर एमएससी वाले अलाउड है। तो मुझे लगा सर को ना डांट पड़ जाए, इसलिए मैं एक बायो में बीएससी की बच्ची को ले आई, वो साथ में डांस करने के लिए। तो मैंने सोचा मैम से परमिशन ली तो ताकि सर को डांटना पड़े। मेरी किस्मत उसी मिट्टी के तेल की तरह है, मैं हमेशा फंसती हूँ। तो मैं मैम के पास गई, मैंने कहा मैम तो सर कह रहे हैं कि बीएससी के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है।
तो आपकी भी तुम यही रह जाओगे या तो क्लास भागोगे तो भागते ही रह जाओगे, क्योंकि यहीं पे भागोगे, आगे नहीं भाग पाओगे। ये तो मतलब तुम लोग ने डबल डेकर केक, सारे केक को छोटा कर दिया। आपने स्टार्ट किया और ये एंजॉय थैंक यू। पूरी क्लास की तरफ आ जाइए।